Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की, त्रिदंडी पादगन की जय, गोकुल गौशाला की जय, गौ माता की जय, ग्वालपाड़ा धाम की जय, श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी की, गुंडीचा मंदिर की जय, सुंदराचल की जय, रथ यात्रा महा महोत्सव की जय, गुरु कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पुरन, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा, यतो यतो यामि ततो नृसिंहा, बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखालये, वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवेत्तां नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन हम लोग आज पहले एक पत्र द्वारा करेंगे। ये लेटर हमारे परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति सर्वस्व निष्किंचन महाराज जी को गुरु महाराज ने लिखा था 1990 में। ये लेटर अब मैं आपके सामने पाठ कर रहा हूं। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, अर्जेंट, dated 2890, with Dandvat pranams to the lotus feet of revered Vaishnavas. My dear Shripad Nishkinchan Maharaj, we reached here safe on 11th instant, but late hours in the night at 2:30 a.m. The train was late by more than 8 hours. The train journey at present has become a matter of anxiety and botheration. It gives me relief to learn from Putul Mitra, who came from Chandigarh, that Shri Janmashtami function of Chandigarh Mutt terminated successfully. There was heavy security arrangement. It is not known where mishap will happen. Supreme Lord Shri Krishna can only save us and protect us. The situation of the world is day by day deteriorating. In this most unstable world, temporary world, we should complete our duties as early as possible. By the grace of Shri Guru and Gauranga, the 5-day-long Calcutta Mutt Shri Janmashtami function concluded successfully and grandly.
Devotees in large numbers participated in the function. I received one letter from Shri Dev Prasad Prabhu from Dehradun the other day, in which he expressed his desire to hold temple installation function on Shri Ras Purnima Day on 2nd November 1990, as the temple construction of Dehradun Mutt has been completed, except fixing of Kalash and Chakra. But it will not be possible for me and for many of us to go to Dehradun prior to 2nd November, as we will be confined to Vrindavan up to 2nd November, Ras Purnima Tithi, on which date many people may take Harinam and Mantra Diksha. Moreover, the Calcutta Mutt devotees will return from New Delhi on 4th November. That is, will leave New Delhi for Howrah on 4th November. At the earliest, we can leave for Dehradun on 4th November by Mussoorie Express from Delhi in the night train. We can reach Dehradun on 5th November and not earlier to that. I requested Param Pujyapad Srimad Puri Goswami Maharaj to fix auspicious dates after 5th November for temple installation so that all of us can participate. He has fixed two dates, 7th November and 9th November. I have given a suggestion to Dev Prasad Prabhu to hold temple installation on 7th November and to celebrate the function from 6th November to 8th November. 6th November will be Abhishek Tithi, Adhivas Tithi, and 8th November Nagar Sankirtan procession may be taken out. In that case, we can reach New Delhi from Dehradun after temple installation on 10th November morning. We can first perform function at Shakarpur from 11th November to 13th November, and after that at Paharganj, New Delhi from 14th to 16th November for 3 days only. We can leave to Bhatinda on 17th November and stay there up to 25th November. I have sent instruction to New Delhi to stop printing programs now. I shall have to return to Calcutta for Shri Chaitanya Vani magazine work. We shall leave for Bombay from Calcutta on 10th December. We may reach Bombay on 11th December night or 12th December morning. We shall stay there for 10 days. Your presence there is essential. I dropped one letter to Dev Prasad Prabhu intimating him the above dates for Dehradun temple installation function. I am awaiting his reply. If the dates are confirmed, we shall go to Dehradun after Vraj Mandal Parikrama with all important sannyasis and brahmacharis. Presence of Vaishnavas in the function is most auspicious. Nothing else is necessary. It will be good for future also. Every year after Kartik Vrata, Vaishnavas can go to Dehradun if the function is celebrated a few days after Ras Purnima. If we are to celebrate temple installation at Dehradun Mutt on 7th November, I shall request you to start the construction work of Sankirtan Bhavan, first floor of Dehradun Mutt immediately so that roof is completed before the function. Otherwise, there will be great difficulty in holding the function. At least 2 rooms are to be constructed in the ground floor for the stay of sannyasis. You can engage Chidgananand Das at New Delhi construction repair work, but you should be personally present in completing the work of first floor of the hall, lecture hall,
at Dehradun, because Shri Dev Prasad Prabhu will respect you and will be encouraged by your presence. He can consult with you at every step. Jammu program has been fixed from 9th September to 18th September. We shall leave for Jammu on 7th September 1990 by Himgiri Express. Still night curfew is continuing at Jammu and it is reported to me. I do not know whether there will be an improvement when we shall go there. I have received one letter from Shri Raghunath Shaldi Prabhu from Rajpura. He has expressed his satisfaction for our Prachar program at Rajpura, but he has written the letter that as the situation at Rajpura is not congenial, they will not take out Nagar Sankirtan and meetings will be held within enclosure walled area with security help if necessary. To my opinion, is it necessary to hold function there now? If the situation is not congenial, we can postpone it now. It will be better if we can go direct to Jammu to Dehradun, from Jammu to Dehradun, to expedite the work there and to consult matters personally. You can personally meet Shaldi Prabhu, discuss it to the discussion regard to this. I shall also write to him. In this uncertain situation, it will be wise to complete our duty at Dehradun Mutt. We are so accept my Dandvat Pranam. Early reply is solicited. Aptly yours, गुरुजी का सिग्नेचर. तो ये लेटर अपने आप में एक इतिहास है और गुरु महाराज जी ने हमारे परम आदरणीय निष्किंचन महाराज जी को बड़ा डिटेल में सारा प्रोग्राम लिखा और इस लेटर से ये प्रूव होता है कि वो कितना गहराई से कंसल्ट करते थे एक दूसरे को. तो बड़ी हमारे मठ की बातें हैं छुपी हुई जो इस लेटर में आ रही हैं. और इन मठ की बातों के बीच में गुरुजी ने एक बात कही, वो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो है, इट इज नॉट नोन वेयर मिसहैप विल हैपन. इट इज नॉट नोन वेयर मिसहैप विल हैपन. हमें नहीं पता कहां पे कोई घटना घटित हो जाए, कहां पे कोई दुर्घटना घटित हो जाए. सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा कैन ओनली सेव अस एंड प्रोटेक्ट अस. केवल भगवान श्री कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं, हमारी रक्षा कर सकते हैं. द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज डे बाय डे डिटीरियरेटिंग. इस दुनिया की परिस्थिति हर दिन और घटती निम्न स्तर की ओर जा रही है. इन दिस मोस्ट अनसर्टेन टेम्पररी वर्ल्ड वी शैल कंप्लीट अवर ड्यूटीज. ये अत्यंत क्षणभंगुर जो दुनिया है, इसमें हमें अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल. तो ये 1990 में गुरु महाराज जी परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी को कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द अपनी ड्यूटीज पूरी कर लेनी चाहिए इस दुनिया की, क्योंकि समय जो है उसका कोई पता नहीं, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है.
तो मैंने ये देखा, जो ये दोहा है ना, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण इक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो मैंने राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर गुरुजी से ये देखा है कि वो हमें बार बार इस बात को याद दिलाते हैं, नारायण इक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो ये बार बार गुरुजी याद दिलाते हैं कि किसी भी क्षण हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमको भगवान को याद रखना है। कभी भी गुरु महाराज जी इस बात से मतलब पीछे नहीं हटते। तो हमारे देहरादून मठ के जो मठ रक्षक थे देव प्रसाद प्रभु, वो भी एक अद्भुत वैष्णव थे कि गुरु महाराज जी के साथ कुछ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं था उनका। हम जब भी गुरु जी के साथ देहरादून जाते तो वो कोई उत्साह नहीं दिखाते थे। एक बार हम दोपहर को पहुंचे तो वो लोग अभी भोग लगा के प्रसाद पाने लगे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितने लोग आए हैं, तो मैंने बताया। तो उन्होंने उसी प्रसाद को जो है जल्दी जल्दी हमें सर्व कर दिया। तो मठ के प्रति तो उनकी बड़ी निष्ठा थी, तो इसलिए गुरु महाराज जी उनको बड़ा आदर देते थे, बड़ी मर्यादा देते थे। और यहाँ पे उन्होंने निष्किंचन महाराज जी को बोला कि वहां का जो कंस्ट्रक्शन का काम है आप जाके देखो, क्योंकि वो आपका आदर करते हैं। तो गुरु महाराज जी कहाँ किसको भेजना है, कैसे किससे काम लेना है, ये बड़ा व्यवहारिक तौर पे समझ के काम करते थे। तो इसमें बड़ी शिक्षाएं की बात है इस लेटर में। 1990 में गुरु महाराज जी ने बॉम्बे जाने का भी प्रोग्राम बनाया था मेरे प्रार्थना करने पे, लेकिन 1990 में हमें वहां प्रोग्राम करने में सफलता नहीं मिली, इसलिए प्रोग्राम नहीं हो सका। और फिर गुरु महाराज जी पहली बार 1995 यानी 1995 में बॉम्बे गए। तो कल रथ यात्रा हुई है और भारत के लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज की वजह से रोक लगा दी, ऐसी कोई ले ली रिट। लेकिन बाद में हमारे समाज के लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड रथ यात्रा अलो की। तो कल का जो रथ यात्रा थी पहले नहीं हो रही थी, फिर हुई। इससे भक्तों के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा साल जगन्नाथ जी भक्तों से मिलने का इंतजार करते हैं, एक साल। फिर भक्त लोग जगन्नाथ जी का इंतजार करते हैं कि वो बाहर आएंगे। ऐसे कई भक्त हैं जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो जगन्नाथ जी उनके लिए बाहर आते हैं। वो एक साल से वेट करते हैं, हमारे जगन्नाथ जी। तो जब उनको पता चला जगन्नाथ जी बाहर आ रहे हैं तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं था। तो सारे विश्व में लहर दौड़ गई खुशी की। और ये पहली रथ यात्रा हुई जिसमें इतने कम लोग थे, और मुझे लगता है वो जो पंडा लोग और दईतागण, तो पुजारी लोग, उन्हीं ने रथ खींचा है, उन्हीं के द्वारा ये रथ यात्रा संभव हुई। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े सौभाग्य की बात ये जो रथ यात्रा कल हुई है। और हमने याद किया कि कैसे हमारे परम गुरु महाराज जी रथ यात्रा में बिल्कुल बड़े मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक साथ साथ नृत्य करते हुए चलते थे, भक्तों के साथ उदंड नृत्य कीर्तन करते हुए पूरे रथ में शामिल होते हमारे परम गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी। और मैंने अपनी आंखों से देखा गुरु महाराज जी को रथ यात्रा में
ऐसा नृत्य कीर्तन करते हुए कई कई घंटे, अद्भुत। और फिर आज शाम को गुंडीचा में पहांडी करेंगे। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में रथ से उतरेंगे और पधारेंगे। कल हमने सुना कि जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका नाम नंदी घोष है, और बलराम जी का जो रथ है उसका नाम ताल ध्वज है, और सुभद्रा देवी के रथ का नाम देवदलन है। तो हर रथ की ऊंचाई अलग अलग है, पहिए हैं, सारथी हैं, तो सारी डिटेल कल हमने सुना। और पहांडी विजय से लेके कैसे रथ यात्रा हुई, कैसे महाप्रभु ने रथ के आगे 7 अलग अलग स्थानों में प्रकट होके एक साथ नृत्य किया, कैसे राजा प्रताप रुद्र ने रथ के ऊपर से महाप्रभु के इस प्रकाश को देखा, और सार्वभौम भट्टाचार्य जी और काशी मिश्र ने ये देखा, और राजा की जो वो झाड़ू सेवा है जिसको चेहरा पहरा कहते हैं, उससे प्रसन्न होकर महाप्रभु ने उन पे कृपा की है। रथ जो है वो श्री मंदिर से चल के गुंडीचा के आधे रास्ते पे बलगंडी स्थान पे थोड़ा विश्राम लेता है, बाल भोग लगता है वहां। और इस प्रकार हमने कल रथ यात्रा का वर्णन चैतन्य चरितामृत से सुना। अब थोड़ा परम गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र, ये जो गुरु महाराज ने पावन जीवन चरित्र परम गुरु महाराज जी का अपने हाथों से लिखा, बांग्ला में, फिर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन हुई, फिर इंग्लिश इसका समराइज्ड एडिशन छपा। तो हमने यहां पढ़ा था कि जलंधर में, पंजाब में जो प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में परम गुरु महाराज जी जलंधर में माई हीरा गेट के पास सनातन धर्म मंदिर में प्रोग्राम कर रहे थे। तो पांडे जी आ गए, इनकम टैक्स ऑफिसर, और बड़े एग्रेसिवली उन्होंने बड़े क्वेश्चन किए, गुरु महाराज जी हमें आपके आत्मा परमात्मा को हम नहीं मानते, हमें प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो वहीं पे एक और बात हुई, एक माता आई। रवि इसमें नहीं डाल, पीले बाहर रख उसको, पीले लिफाफे में डाल उसको, चल। तो एक माता ने आके पूछा पंजाबी भाषा में, परम गुरु जी ने हमारे पूज्यपाद पुरी महाराज को उसका अनुवाद करने को बोला। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से, बचपन से मंदिर आई, बूढ़ी हो गई, लेकिन मेरा भगवान में बिंदु मात्र भी प्रेम नहीं हुआ, जबकि संसार में पुत्र कन्या नाती पोतों में और भी आसक्ति बढ़ गई, इसका क्या कारण है? तो हमारे परम गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अगले दिन सभा में उस प्रश्न का उत्तर दिया। प्रश्न था, यदि भगवान में प्रेम ही नहीं हुआ तो इन सब साधनों का फल क्या है? परम गुरु जी कहते हैं, क्या उन्होंने कभी भगवान के स्वरूप, अपने स्वरूप, जगत के स्वरूप और उनके साथ क्या संबंध है, इन विषयों के बारे में जिज्ञासा की है? या भेड़ चाल की तरह वे मंदिर में आ रही हैं? अथवा क्या कभी किसी से इन विषयों की जिज्ञासा करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई? क्योंकि संबंध ज्ञान के उदय हुए बिना कभी भी भगवान में प्रीति नहीं हो सकती। संबंध ज्ञान से ही प्रीति होती है। अब देखो, हम सुनते हैं संबंध ज्ञान प्रीति, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती। हम परम गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि मैं संसार का हूं, इस भाव से जब हम काम करते हैं तो ये सब
कर्म हो जाते हैं, और मंदिर में आने से भी संसार के स्वार्थों की सिद्धि के लिए ही आते हैं, भगवान के लिए नहीं आते। ये स्वाभाविक ही है, जहां पर हमारा अभिमान होगा, जिनके लिए हम कार्य करेंगे उनके प्रति ही हमारी प्रीति होगी। जब मैं समझूंगा कि मैं भगवान का हूं, भगवान से ही मेरा सब प्रकार से नित्य संबंध है, अर्थात अप्राकृत शुद्ध अस्मिता जब प्रकट होगी, तब भगवत प्रीति ही मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। तब मैं स्वाभाविक ही भगवान के लिए कार्य करूंगा। भगवान में स्वार्थ बोध, अर्थात भगवान ही हमारी परम आवश्यकता है, ऐसा ज्ञान होने पर मैं अपने आप को अपना कहकर जो कुछ है वह सब भगवान को अर्पित कर पाऊंगा। इस प्रकार की अवस्था में ही भगवान में प्रीति और प्रेम होना संभव है। तो जब हम भगवान को अपना स्वार्थ मानेंगे, भगवान को अपना समझेंगे, अपने आप को भगवान का समझेंगे, ऐसी अवस्था में ही भगवान में प्रेम प्रीति होना संभव है। और ये सदगुरु की कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से संबंध उदय होता है। संबंध ज्ञान से पहले भगवान की आराधना संभव ही नहीं होती। लेकिन हम लोग बाकी आराधना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन संबंध ज्ञान में ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो मेरी समझ में नहीं आता। तो इसलिए फल भी प्राप्त नहीं कर पाते। और जब संबंध ज्ञान होता है, उसके बाद साधन कैसे करना है, यानी अभिदय, और साधन के बाद प्राप्त क्या करना है, उद्देश्य क्या है, साध्य क्या है, उसको प्रयोजन कहते हैं। संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये परमार्थिक जीवन है, उसकी पहली सीढ़ी संबंध ज्ञान ही है। तो ये बात हमने गुरु महाराज से बड़ी बार सुनी, माई हीरा गेट, और उस माता का प्रश्न पंजाबी में, और गुरु महाराज जी, परम गुरु जी का अगले दिन जवाब, संबंध ज्ञान। लेकिन इतने साल हो गए, अभी तक संबंध ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु महाराज ने बोल दिया कि शुद्ध भक्त की कृपा से ही ये बात दिल में उतरती है। शुद्ध भक्त, सदगुरुदेव, उनकी कृपा से ये बात दिल में उतरती है, ऐसे ये पॉसिबल नहीं। तो ये इसके बाद लिखा होशियारपुर का प्रोग्राम। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मायावाद के गढ़ पंजाब के नर नारियों में परम गुरु महाराज जी की महापुरुषोचित कृपा से शुद्ध भक्ति के व्यापक प्रचार से एक नव जागरण हुआ, एक नव आध्यात्मिक चिंता स्तोत्र का नव जागरण हुआ, जिससे चारों तरफ श्रीला गुरुदेव के शुभागमन के लिए निमंत्रण आने लगे। तो सभी निमंत्रण परम गुरु जी स्वीकार नहीं कर पाते, उनमें से कुछ निमंत्रण को स्वीकार करके पंजाब में वो प्रचार करते। तो इस प्रकार होशियारपुर गए, लुधियाना और चंडीगढ़ में शुभ पदार्पण किया और महाप्रभु की भक्ति सिद्धांत वाणी का प्रचार किया। उक्त प्रचार से आकृष्ट नर नारी शुद्ध भक्ति सदाचार ग्रहण करते हुए श्रीला गुरुदेव जी के चरणाश्रित हुए। श्रीला गुरुदेव जी ने 13 मई से 17 मई मंगलवार तक होशियारपुर में श्री हरि बाबा जी के सच्चिदानंद आश्रम में प्रोग्राम किया। तो होशियारपुर में श्री हरि बाबा जी का सच्चिदानंद आश्रम है। इसके बारे में गुरु महाराज जी ने कई बार बतलाया हमको कि ये जो सच्चिदानंद आश्रम है, यहाँ के लोगों ने हमारे गुरु महाराज जी को ऑफर दी कि महाराज जी आप यहाँ आइए, हम आपको यहाँ का इंचार्ज बना देते हैं
और आपको कुछ नहीं करना होगा, एक टाइम कथा करनी होगी। बाकी आपका कपड़ा, खाना पीना, रहना सब कंफर्टेबल हम करेंगे। गुरु महाराज मुस्कुराए। गुरु जी कहते हैं हम लोग बैठ के खाने वाला नहीं है, हम लोग परिव्राजक है। हम सब जगह घूम के महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने के लिए आराम से बैठ के खाएंगे, इसके लिए हमारा जीवन नहीं। तो होशियारपुर के हरि बाबा मंदिर वाले चाहते थे कि हमारे गुरु महाराज उनके पास ही रह जाएं और वो वहां के मुख्य प्रचारक बन जाएं। इस प्रकार की ऑफर्स गुरुजी को आती रहती थी। तो उसके बाद होशियारपुर के बाद लुधियाना गए और वहां एक मंदिर है श्री इलायची गिरी मंदिर। इलायची गिरी मंदिर लुधियाना में कोई होगा, मैंने तो देखा नहीं कभी। तो इलायची गिरी मंदिर में परम गुरु महाराज जी का प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद चंडीगढ़ में 23 सेक्टर में सनातन धर्म मंदिर में परम गुरु महाराज अपने पार्षदों के साथ आए और व्यापक रूप से शुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी का प्रचार किया। तो होशियारपुर के राजा राम एडवोकेट, लुधियाना के श्री नरेंद्र कपूर और श्री कृष्णलाल बजाज, श्री सत्य प्रकाश जी, लाला मंगत राय जी, पंडित श्री देवकी नंदन शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर श्री सीताराम जी महिंद्रू, न्यायाधीश श्री शमशेर बहादुर जी, सिख संप्रदाय के गुरु श्री लक्ष्मण सिंह जी संत, सनातन धर्म मंदिर के सभापति श्री द्वारकादास थापर, सह सभापति श्री रोशन लाल जी सूद, सेक्रेटरी श्री कृष्ण दत्त जी, पंजाब के मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री सेवा सिंह जी, श्री लाजपत राय मोंगा, दीवान शांति स्वरूप जी, श्री चुनी लाल वासुदेव व श्री सुखदेव राजबख्शी इत्यादि पंजाब के बहुत शिक्षित विशिष्ट व्यक्ति प्रभावित हुए। इन लोगों में से कई लोगों का नाम आप जानते होंगे जो परम गुरु महाराज जी के उस स्टार्टिंग के प्रचार से प्रभावित हुए। हर जगह नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकली, नर नारियों के हृदय में कृष्ण नाम की महिमा संचारित हुई। परम गुरुदेव के इस प्रचार कार्य में जो श्री नारायण दास ब्रह्मचारी, जिनका पूर्वाश्रम लुधियाना, श्री खन्ना के श्री राधा कृष्ण गर्ग, फिरोजपुर के श्री राम विनोद ब्रह्मचारी ने भी सहयोग दिया। अभी लुधियाना में एक श्री दंडी स्वामी आश्रम है सिविल लाइन पर, वहां 3000 से ज्यादा लोग परम गुरु जी को सुनने आए और उस सभा में गर्मी को भगाने के लिए पंखा कर रहे थे, पंखा सेवा कर रहे थे। तो वो पंखा सेवा, सब लोग पंखा लेके एक दूसरे को हवा कर रहे थे। तो श्रोताओं के बीच में पंखा व्यंजन सेवा की जो होड़ लगी, उसको देख के परम गुरु जी बड़े उत्साहित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। परम गुरु महाराज ने कहा, इस प्रकार दूसरों को सुख देने के लिए यदि परस्पर में प्रतियोगिता हो तो इसकी अपेक्षा सुख का विषय और क्या हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की वृत्ति आने से समाज में वास्तविक सुख और शांति प्रतिष्ठित होना संभव है। तो ये पंजाब में खासियत है, पंखी करते हैं, सत्संग में पंखा करते हैं हाथ से। तो मुझे याद है एक बार मथुरा से दिल्ली ट्रेन में हम आ रहे थे, ताज एक्सप्रेस, तो नॉर्मल जो विदाउट एसी वाला चेयर कार में बैठे थे गुरुजी। तो गर्मी थी, बड़ी गर्मी थी, तो मैं पंखा लेके गुरु महाराज को पंखा करने लगा। तो इतनी ज्यादा हमारे अंदर वो उत्साह होता था, गुरुजी को पंखा कर रहे हैं, गुरुजी कुर्सी पे बैठे थे, मैं उनके चरणों में बैठ के सामने ट्रेन में उनको पंखा झोल रहा हूँ। मैं इतनी जोर 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 से करने लगा कि मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि वो हवा बड़ी तेज होगी। गुरुजी ने मेरे को रोका, आस्था से कहते थोड़ा आस्था।
फिर मैं आस्ता आस्ता किया। तो पंखा सेवा की बड़ी आदत है यहाँ पंजाब के लोगों को। तो चंडीगढ़ में श्री लक्ष्मण सिंह श्री संत जी के आवाहन से उनके आश्रम में परम गुरु जी गए और गुरु ग्रंथ साहब की, श्री कृष्ण के आलेख और श्रीला गुरुदेव की पूजा की। वहां पर आयोजित सभा में श्रीला गुरुदेव के श्रीमुख से हरि कथा श्रवण करके श्री संत जी और अन्य अन्य योगदानकारी महाप्रभु की शिक्षा के प्रति विशेष रूप से श्रद्धा युक्त हुए और बहुत द्रव्यों एवं प्रणामी द्वारा उन्होंने परम गुरु जी के प्रति भाव निवेदन किए। संत जी के अमानी मानद नम्र व्यवहार से श्रील गुरुदेव जी सभी साधु बहुत प्रसन्न हुए। 84 कोस ब्रज मंडल परिक्रमा 29 अक्टूबर 1966 जो ब्रज मंडल परिक्रमा हुई, उसमें हमारे परम गुरु महाराज जी के अनुगत्य में सारे रास्ते पैदल ब्रज मंडल परिक्रमा की व्यापक व्यवस्था की गई। पैदल व्यापक चलने की व्यवस्था। वन भ्रमण के समय 2 तंबुओं का सेट साथ ही चलता था। एक एडवांस में जाके तंबू लग जाता था। परिक्रमाकारी भक्त निर्दिष्ट स्थान पहुंचने से पहले ही तंबू लगाकर तैयार रखते और तंबुओं में ही ठाकुर जी का मंदिर, सत्संग भवन आदि बनाए जाते थे। महिला पुरुष भक्त और साधुओं के ठहरने की अलग अलग व्यवस्था थी। भंडार, रसोई, प्रकाश करने का साजो सामान, प्राथमिक चिकित्सा की दवाइयां, डॉक्टर, पहरेदार सब मिलकर वन में कुछ समय के लिए एक छोटे से जनपद की प्रतिष्ठा हो जाती थी। वहां सारी व्यवस्था होती, डॉक्टर होता और एक छोटा सा शहर बन जाता। पहरेदार भी होते, दवाइयां भी होती। लेकिन जो शहर के अभ्यासी लोग हैं उन्हें वन के एकांत में रहना रोमांचकारी और सुखदायक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो गुरु जी एडवेंचर के लिए लिख रहे हैं कि शहर के लोग जो थे उनके लिए ये जो वन यात्रा थी ये रोमांचकारी थी और सुखदायक थी, किंतु निर्जन वन में इस प्रकार ठहरने में भय का कोई कारण नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। तो भय का भी कारण रहता है। तब भी श्री कृष्ण की लीला भूमि के दर्शनों की इच्छा भक्तों को पूरा विश्वास होता कि कृष्ण ही हमारे रक्षक और पालक हैं। वे निर्भीक होकर वन में घूमते रहते हैं और वे कृष्ण के अभिन्न स्वरूप श्रीला गुरुदेव के द्वारा सब अवस्था में रक्षित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दुनिया भी तो एक जंगल है और इस जंगल में जो हमारे गुरु महाराज जी के आश्रित जन हैं वो सब श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप श्रील गुरुदेव के द्वारा सब अवस्थाओं में रक्षित होते हैं। इस दुनिया में भी वस्तुतः बद्ध जीव, मायाबद्ध व्यक्ति जो भगवान की लीला दर्शन के लिए साधन करते हैं, ऐसे साधक शरणागत भक्त के अनुगत्य को छोड़कर अपनी योग्यता द्वारा भगवत लीला का दर्शन नहीं कर सकते। तो ये बड़ी बातें गहरी हैं, समझने वाली हैं कि अनुगत्य छोड़कर ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं होती। शरणागत भक्त के अनुगत्य को छोड़कर भगवत लीला का दर्शन नहीं कर सकते। हम अपनी योग्यता से ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं कर सकते। हमें गुरुदेव की शरण में ही ब्रजमंडल परिक्रमा करनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। परमाराध्य श्रील गुरुदेव के अनुगत्य में जिन भक्तों ने
ब्रजमंडल परिक्रमा कही है, वही सच्चे भाग्यवान और भाग्यवती है। देखो ये गुरु महाराज कहीं कहीं पे कुछ ऐसी बात लिख देते हैं कि जिस आदमी ने परम गुरु महाराज जी के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा की है, वही मोस्ट फॉर्चुनेट है, भाग्यवान है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं के अभिन्न स्वरूप हमारे गुरु महाराज जी के साथ हमें जो परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये भी तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहां लिखा, नई नई लीला भूमियों के दर्शन मिलते रहने से और भगवान की स्मृति बने रहने से संकीर्तन करते हुए लंबे लंबे रास्तों पर पैदल भ्रमण करना क्लेशप्रद होने पर भी क्लेशप्रद नहीं लगता। दुर्गम स्थानों में जो श्री कृष्ण की लीला भूमियां हैं, उनके दर्शनों का सुयोग पैदल चलकर ही हो सकता है, बसों और टांगों के द्वारा नहीं। पैदल 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा जो परम गुरु महाराज के अनुगत में कई बार हुई है, उनमें निवास स्थानों में क्रम इस प्रकार है। कहां कहां पे वो परिक्रमा ठहरती थी वो दिखा। मथुरा में श्री वृंदावन दरवाजा धर्मशाला, श्री वृंदावन दरवाजा धर्मशाला मथुरा। मधुवन महोली, बहुलावन वाटी, श्री राधा कुंड, श्री गोवर्धन, लाठावन, डीग, कामेवन, श्री विमला कुंड तीर, श्री बरसाना, भानुकुंड, नंदग्राम, पावन सरोवर तीर, कोसी, खेलन वन, शेरगढ़, नंदघाट, माठवन, राया, लोहवन, गोकुल महावन, ब्रह्मांड घाट और श्री वृंदावन। तो 17 जगह पे उसका कैंप लगता था। अभी तो 4-5 जगह पे लगता है। तो बैलगाड़ियों से और कैंपों से, टेंटों से परिक्रमा होती थी। तो 17 जगह पे कैंप लगता था, मथुरा से लेके वृंदावन तक। जिस बार ब्रह्मांड घाट में उठाने एकादशी तिथि को गुरु पूजा मनाई गई, उस वर्ष गुरु पूजा मनाने के बाद सभी ब्रह्मांड घाट से यात्रा करते हुए मथुरा में फतेहचंद धर्मशाला में रात्रि बिताकर दूसरे दिन द्वादशी को पैदल भातरोल के दर्शन करने के पश्चात वृंदावन पहुंचे। तो लिखा, पहली बार बस के द्वारा ब्रह्मांड घाट से यात्रा करते हुए मथुरा में रात बिताकर फिर पैदल वृंदावन पहुंचे भातरोल के दर्शन करने के बाद। बस कहीं नहीं लिखी, मेरे मुंह से निकल गई, बस नहीं हुई थी उस दिन, पैदल ही हुई। तो कोलकाता से परिक्रमा में योगदान करने वाले भक्त 27 अक्टूबर 1966 बृहस्पतिवार को तूफान एक्सप्रेस की रिजर्व बोगी में शुभ यात्रा करते हुए दूसरे दिन मथुरा धाम में पहुंचे थे। तो कलकत्ता वाले जो थे वो तूफान एक्सप्रेस को बड़ा लाइक करते थे, और तूफान एक्सप्रेस जो थी वो नाम की तूफान थी, है वो बैलगाड़ी थी। भारत के विभिन्न स्थानों के भक्त मथुरा में आकर एकत्रित होते थे और वहां वृंदावन दरवाजा स्थित हेलनगंज धर्मशाला में रहने की व्यवस्था होती। तो कैसी कैसी जगह है हेलनगंज धर्मशाला। अंग्रेजों के टाइम किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की वाइफ होगी हेलन, उसके नाम से हो गया हेलनगंज धर्मशाला। यह धर्मशाला साधारणतः फतेहचंद धर्मशाला के नाम से प्रसिद्ध है। और रास पूर्णिमा के दिन, शरद रास पूर्णिमा, शरद जो 29 अक्टूबर को थी, तो मथुरा धाम से परिक्रमा प्रारंभ हुई और 12 वनों से गई। आप में से कितने लोगों को वृंदावन ब्रज के 12 वनों के नाम याद है? मुझे भी याद नहीं है। 12 वन गुरुजी लिख रहे हैं, मधुवन, ताल वन, कुमुद वन, बहुला वन, काम्य वन,
खदीरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बिल्ववन, लौहवन और महावन। तो हमको ये याद कर लेना चाहिए, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामेवन, खदीरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बिल्ववन, लौहवन और महावन। तो इसके बाद रास पूर्णिमा जो आती है, उस दिन वृंदावन में इसकी समाप्ति 29 नवंबर को हुई। 1966 की बात लिख रही हूं। तो 200 से अधिक लोग इस ब्रजमंडल में परिक्रमा में शामिल हुए, लेकिन वृंदावन पहुंचते पहुंचते संख्या और बढ़ गई थी। और 12 नवंबर को परम गुरु जी नंदग्राम में आए और वहां पे अन्नकूट महोत्सव हुआ, गोवर्धन पूजा हुई, दिवाली के दूसरे दिन, आप जानते ही हैं। उत्थान एकादशी को ब्रह्मांड घाट में परम गुरु जी की व्यास पूजा का आयोजन किया गया और परम गुरु जी ने यमुना स्नान के बाद स्वयं ही विग्रहों का अभिषेक और पूजा की। और श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी महाराज, श्रीला भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज, पूज्यपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, ठाकुर दास ब्रह्मचारी, श्रीमन नारायण मुखोपाध्याय, सनातन दासाधिकारी, गुरु भाइयों को प्रसादी माला चंदन वस्त्र द्वारा श्रद्धा कुसुम निवेदित किए। तो परम गुरु जी के टाइम से ये परंपरा है कि अपनी व्यास पूजा के दिन परम गुरु जी अपने गुरु भाइयों को माला, चंदन और वस्त्र भेंट करते थे और साथ में प्रणामी भी होती थी। इसके पश्चात अपने गुरु भाइयों के अनुरोध पर ही श्रीला गुरुदेव आसन पर विराजमान हो गए। उनके विराजमान हो जाने पर त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति ललित गिरी महाराज ने महासंकीर्तन और षोडश उपचारों द्वारा श्रील गुरुदेव के पाद पद्मों में पुष्पांजलि अर्पित की। इस पवित्र अनुष्ठान में गिरधारी दास बाबा जी महाराज, मथुरा स्थित केशव गौड़ी मठ के श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण महाराज, श्रीमद भक्ति वेदांत पर्यटक महाराज और गोकुल दास बाबा जी भी उपस्थित थे। दूसरे दिन द्वादशी को वृंदावन धाम में स्थित चैतन्य गौड़ी मठ में परम गुरु जी का आविर्भाव उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। तो रास पूर्णिमा हुई ब्रह्मांड घाट में और अगले दिन उत्सव हुआ वृंदावन में। ठीक है जी। तो इस महोत्सव के अनुष्ठान में श्रीधाम, वृंदावन और मथुरा धाम स्थित सभी गौड़ीय मठों के वैष्णव ने बड़े उत्साह के साथ योगदान दिया था। स्थानीय ब्रजवासियों की सेवा भी यथा उपयुक्त व्यवस्था की गई। श्री मठ के विशाल संकीर्तन हाल में संध्याकालीन धर्म सभा के अधिवेशन में परम गुरु जी और बाकी जो उनके गुरु भाई यायावर महाराज, अरण्य महाराज, ऋषिकेश महाराज, उन्होंने प्रवचन किए गुरु तत्व और गुरु पूजा की आवश्यकता पे। सब ने एक बात जरूर कही कि कैसे प्रभुपाद जी की अपार करुणा शक्ति हमारे परम गुरु जी में संचारित है और कैसे उन्होंने आसाम, उत्तर भारत, दक्षिण भारत महाप्रभु की प्रेम धर्म वाणी का व्यापक प्रचार किया, बड़े मठ स्थापन किए। इस बात को सबने बोला। तो परम गुरु महाराज जी की व्यास पूजा कैसे ब्रजमंडल परिक्रमा में होती, इसके बारे में पावन जीवन चरित्र में गुरु महाराज ने लिखा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।